Good morning, everyone. Today's we continue with our topic idioms. Yesterday also we learned idioms. We go through with the five examples of different idioms, five different idioms, and also we go through with the examples of idioms. Today we also continue the more idioms and more examples. So here first of all we start from our daily videos. Our today's vocabularies and today's phrases: cost the earth, Welcome to charge Daily the earth. Video Vocabulary. A dose of daily new English phrases. My today's phrase are cost the earth and charge the earth. Now tell me, what is the meaning of cost the earth and charge the earth? What is the meaning of cost the earth and charge the earth? Yes, think on. Yes, cost the earth and charge the earth means it is a so expensive. Okay, it's a so expensive. Uh, we know something are very expensive. Like in a when we go to the movie, their popcorn is so expensive. Okay, and some malls and some like restaurants and some cafes charge the things is very expensive. So we can say cost the earth. Okay, something is very expensive, then we can say in place of very expensive, we can say cost the earth, charge the earth. Okay, so we go through with the exact meaning of cost the earth. Something is very expensive or costly. If something is very costly and expensive, then we can say it's a cost the earth, charge the earth. There is no difference between cost the earth, charge the earth. Both are the same. Cost the earth means in same as charge the earth. Okay, cost the earth and charge the earth. Cost the earth, charge the earth. Something is very expensive or costly. Okay. Now we move for the examples. Okay. First example is coffee shop. Okay. We know the cafe. They are charging cost the earth. Okay. For just a cup of tea, cup of coffee. Here there is the same example. Just having a cup of coffee. Just having a cup of coffee cost the earth in this ridiculous expenses मतलब बहुत ज्यादा महंगा मतलब कि रेडिकुलसली ये क्या है एक्सपेंसिव है जस्ट हैविंग अ कप ऑफ कॉफी कॉस्ट द अर्थ इन देयर इट्स रेडिकुलसली एक्सपेंसिव मतलब यानी ये बहुत क्या है महंगा है just having a cup of coffee cost the earth in there it's ridiculously expensive मतलब ये क्या है बहुत ज्यादा महंगा है अगर कोई भी चीज बहुत ज्यादा महंगी हो तो हम लोग उसे क्या करेंगे ridiculously expensive. Okay, just having a cup of coffee cost the earth in this ridiculously expensive. We go for the second example. It's a wonderful compact car. It's a wonderful compact car. ये कार क्या है wonderful है और क्या है compact है compact कार जो है but प्रॉब्लम क्या है इस कार के साथ कि दे आर चार्जिंग द अर्थ फॉर इट ये बहुत क्या है महंगी है बहुत क्या है महंगी है यानी ये बहुत अच्छी कॉम्पैक्ट कार है वंडरफुल कार है बट प्रॉब्लम क्या है दे आर चार्जिंग द अर्थ फॉर इट नाउ this example is little bit confusing but I'm clearing this exactly meaning of this examples just a minute. What is this example? The shoes cost the earth. This shoes, this shoes is cost the earth. This shoes is the cost the earth. Cost the earth means what is the meaning of cost the earth? बहुत महंगा है ये शूज क्या है बहुत महंगा है तो हम क्या करेंगे अगर कोई शूज बहुत महंगा है तो हम क्या करेंगे हाँ यहाँ पे एग्जाम्पल में बोला है कि हम ये करेंगे सो लेट गेट देम व्हाइल दे गो ऑन सेल लेट गेट देम व्हाइल दे गो ऑन सेल ओके यानी कि ये शूज तो कॉस्टली अर्थ है ये शूज तो बहुत महंगा है लेकिन हम क्या करने वाले हैं इसको अभी नहीं खरीदेंगे जब इसका सेल लगेगा ना तब खरीदेंगे देखो कोई भी चीज नहीं आती है मार्केट में तो पहले तो महंगी होती है फिर थोड़े दिनों के बाद उस पे क्या लग जाता है सेल लग जाता है कि 20% डिस्काउंट 50% डिस्काउंट 60% डिस्काउंट मतलब सेल लग जाता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है सेल लगेगा तब मैं इस शूज को खरीदूंगा तो ये शूज जो है वो कॉस्टली अर्थ है बहुत महंगा है कॉस्टली अर्थ मीन्स बहुत महंगा है इसे हम लोग क्या करेंगे जब इसका सेल लगेगा ना तभी इसको खरीद लेंगे मतलब शूज तो चाहिए लेकिन अभी नहीं खरीदेंगे कभी खरीदेंगे जब उसका सेल लग जाएगा तब खरीदेंगे दिस इज अ एग्जांपल ओके owing to an apartment in the Mumbai cost the earth.
मुंबई में अगर आपको अपार्टमेंट खरीदना है तो वो क्या है, कॉस्टली अर्थ है, बहुत महंगा है। द रियल एस्टेट प्राइस आर जस्ट राइजिंग, वहां पे रियल एस्टेट प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ते ही रहता है, वहां पे रियल एस्टेट प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ते ही रहता है। तो इट्स अ कॉस्टली अर्थ। Now the notice the next example, don't have anything from the little fridge in your hotel room, they charge the earth for that stuff. Don't have anything from the little fridge in your hotel room, don't have anything from little fridge in your hotel room, they charge the earth for that stuff. What is the meaning of this? Don't have anything from the little fridge, don't have anything from little fridge in your hotel room, they charge the earth for that stuff. इसका मतलब क्या है कि आपकी होटल रूम के जो छोटा सा फ्रिज होता है ना, लिटिल फ्रिज होता है आपकी होटल रूम में, उसमें से कुछ लेना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, उसमें वो लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, इसलिए होटल के लिटिल रूम से कुछ मत खरीदो। दैट इज एग्जाम्पल। ओके, that is a very simple example solved it, and there is a second last example, मेरी ड्रेस इज रियल सिल्क, मेरी का ड्रेस क्या है, रियल सिल्क का है। इट मस्ट हैव कॉस्टेड हर द अर्थ, लेकिन उसकी चार्ज क्या है, बहुत महंगा है, लेकिन वो ड्रेस क्या है, बहुत महंगा है। कैसे पता चला, कॉस्टेड हर द अर्थ, उससे क्या लिया गया, उसका बहुत ज्यादा चार्ज लिया गया, मतलब महंगा ड्रेस उसको दिया गया। टेकिंग केयर ऑफ फैंसी कार, फैंसी कार का क्या करो, ध्यान रखो, टेक केयर ऑफ फैंसी कार, फैंसी कार का क्या करो, ध्यान रखो। लाइक दैट कैन कॉस्ट द अर्थ, क्योंकि उसकी प्राइस क्या होती है, महंगी होती है, क्योंकि वो गाड़ी महंगी होती है। लेट मी टेल यू, मैं आपको ये भी बता दूं, द फॉर पीरियोडिक मेंटेनेंस, कि उसका जो पीरियोडिक मेंटेनेंस होता है ना, उसके लिए भी कंपनी चार्ज दी अर्थ करती है, क्या करती है, चार्ज दी अर्थ करती है। चार्ज दी अर्थ मतलब कि उसके लिए भी कंपनी क्या करेगी, आपको ज्यादा चार्ज लेगी। ओके, अगर कोई चीज हम लेते हैं और वो महंगी होती है तो कॉस्ट दी अर्थ, अगर कोई सर्विस लेते हैं और वो महंगी होती है तो चार्ज दी अर्थ होता है। देखो, कॉस्ट मतलब उसका प्राइस, चार्ज मतलब सर्विस। देखो, हम किसी से कोई चीज खरीदते हैं, जैसे शूज खरीदा, तो चीज खरीदी ना, तो उसका क्या होगा, कॉस्टली अर्थ होगा। कॉस्टली अर्थ मतलब वो महंगी है, उसकी प्राइस बहुत महंगी है। और किसी से हम कोई सर्विस लेते हैं तो उसमें क्या होगा, चार्ज डी अर्थ। चार्ज डी अर्थ मतलब उसका जो चार्ज होगा ना, वो महंगा होगा। तो वी मेक अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्टली अर्थ एंड चार्ज डी अर्थ, बट दोनों का मतलब होगा महंगा होना। यहाँ पे चीजें महंगी है, यहाँ पे सर्विस महंगी है। तो ये एग्जांपल सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें दोनों चीज क्लियर हो रही है, कॉस्टली अर्थ क्या है और चार्ज अर्थ क्या है। ओके, आई होप सभी को समझ आया होगा, कॉस्टली अर्थ मतलब क्या एंड चार्ज अर्थ मतलब क्या। इट इज वेरी सिंपल एंड सिंपलेस्ट वे वी कैन से कॉस्टली अर्थ मीन समथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव और कॉस्टली। अगर कोई भी चीज बहुत एक्सपेंसिव है और कॉस्टली है, तो इस जगह पे हम कह सकते हैं, हम कहीं पे भी जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि भाई इसको रहने दो, ये बहुत महंगी है, तो हम उस जगह पे बहुत महंगी है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉस्टली अर्थ। क्या बोलेंगे, कॉस्टली अर्थ। ओके, हम मॉल में जाते हैं, कहीं पे टू पिकनिक पे जाते हैं, तो वहां पे कोई जगह पे उस चीज महंगी होती है, हमें पता है कि ये इतनी की नहीं होनी चाहिए। जैसे सिंपल एग्जांपल पॉपकॉर्न, हम मूवी देखने जाते हैं तो हमें पता है कि पॉपकॉर्न के इतने चार्ज नहीं होने चाहिए, बट इज कॉस्टली अर्थ। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन द मूवी थिएटर देयर इज अ कॉस्टली अर्थ फॉर द पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न के चार्ज क्या है, कॉस्टली अर्थ है, मतलब वो महंगे हैं। ओके, तो कॉफी शॉप में जाएंगे तो क्या होगा, कॉफी कैफे में जाएंगे तो क्या होगा, वहां पे चार्ज दियर होगा, गाड़ी है, शूज है, ओके, अपार्टमेंट है, होटल्स में कुछ लेते हैं, तो दिस इज ऑल द थिंग्स आर कॉस्ट दी अर्थ। ओके, तो आप इसके एग्जांपल देख लेना। हाँ, यस, सॉरी फॉर दैट, कल का वीडियो हमारा अपलोड नहीं हुआ था बिकॉज मेरे यहाँ पे आफ्टरनून के बाद नेटवर्क का काफी इश्यूज चल रहा था। तो वीडियो मैंने लिंक भी किसी को भेजा था, लेकिन वो लिंक नहीं ओपन हुआ होगा, क्योंकि वो लिंक मैंने बना तो दिया, पर वो वीडियो कंप्लीटली अपलोड नहीं हुआ, और अभी मैं मॉर्निंग में देखा तो वो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो वो लिंक से नहीं खुलेगा। कल का जो वीडियो है वो मैं आज अपलोड अभी मैंने करने रखा है, शायद हमारे क्लास खत्म होते होते वो अपलोड हो जाएगा। तो कल के क्लास का वीडियो और आज के क्लास का वीडियो अभी मैं नेक्स्ट 1 आवर्स के बाद अपलोड कर दूंगा। तो अगर किसी को भी वो देखना हो, कुछ भी हो, तो 1 घंटे के बाद उसको ट्राई करके देख लेना। देखो, मैं लिंक भेजू या ना भेजू, आपको अगर वीडियो देखना है ना, तो आप यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे वेलोसिस एजुकेशन सर्च करो, उसमें जाकर के आपको सारे वीडियोस मिल ही जाएंगे। पर्टिकुलर नाम से होंगे, आपको इडियम्स का वीडियो देखना है तो इडियम्स लिखा होगा, एडजेक्टिव के वीडियो देखना है तो एडजेक्टिव लिखा होगा, डिग्री के वीडियो देखना है तो डिग्री लिखा होगा, वो पर्टिकुलर नेम से होगा, डेट वाइज नहीं होगा। हाँ, डेट वाइज बाजू में बताता है, पर वो सर्च करने से बेटर आप डायरेक्टली जो टॉपिक
के बारे में जानना चाहते हो उसमें जाकर के वो वीडियोस को देख पाओगे। ओके, कंप्यूटर्स के रिलेटेड सारे वीडियोस हैं। कल के दिन के कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं हुए हैं, आज सारे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, तो आप आफ्टर 1 आवर्स के बाद ये सारे वीडियोस को देख पाओगे। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेस इडियम्स। हमने यस्टरडे 5 इडियम्स देखे थे और उसके एग्जांपल्स देखे थे, और आज भी हम लोग आगे के इडियम्स को देखेंगे। आज हमारा लास्ट क्लास होगा फॉर द इडियम्स के लिए। आज मैक्सिमम इडियम्स को मैं आज कवर करूंगा। सबको ध्यान से फटाफट फटाफट समझना है, सारे इडियम्स को ध्यान से समझना है, ताकि हम लोग आज इडियम्स के टॉपिक्स को एंड अप कर पाए, कंप्लीट कर पाए। ओके, तो आज हमारा सबसे पहला हम लोग 10 इडियम्स का आज टारगेट रखते हैं कि हमारा 10 इडियम्स हो जाए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ ये हमारा पहला इडियम्स है, ये हमारा सबसे पहला इडियम्स है। जस्ट अ मिनट। हाँ, सबसे पहला इडियम्स क्या है? लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्ग टाइम नो सी? लॉन्ग टाइम नो सी, दिस इज इडियम्स। देखो, इडियम्स की कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता है। मैं फिर से एक बार बता दूं, व्हाट इज इडियम्स? इडियम्स है वो नो लिटरल मीनिंग। इसके लिटरल मीनिंग नहीं होते, आपको इसका नॉन लिटरल मीनिंग याद रखना पड़ता है, और नॉन लिटरल मीनिंग आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। एक्चुअली इसको यूज इसलिए किया जाता है कि आपके इंग्लिश की लेवल को आप बढ़ा सकते हो, इससे आपकी इंग्लिश की क्वालिटी बढ़ती है। आप कहीं ना कहीं इडियम्स को यूज करके बोलते हो तो आपकी इंग्लिश की लेवल्स को आप इंप्रूव कर पाते हो। सो इडियम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम टू टाइम आपको सिचुएशन टू सिचुएशन इडियम्स बोलना जरूरी होता है इंग्लिश के अंदर। सो इडियम्स मैंने कहा कि अनलिमिटेड है, जिसको हम एक बुक में लिख करके या एक क्लास में मैं सिखा करके खत्म नहीं कर सकता। बहुत सारे इडियम्स हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिमिटेड इडियम्स कुछ 10 15 20 जितने इडियम्स करा रहा हूँ। फिर आप उसके बेसिस पे आप बहुत सारे इडियम्स का कलेक्शन जमा कर सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसके कलेक्शंस अपनी बुक में लिख सकते हो कि भाई ये सारे इडियम्स है। जो अच्छे अच्छे इडियम्स के सिलेक्शन आप अपने बुक में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लाइक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, आप इसके पीछे लंबी स्टडी कर सकते हो। तो इडियम्स आपके पास अच्छे कलेक्शन होना, इडियम्स का यूज करना एक बेटर होता है। उससे आपकी इंग्लिश इजी और इम्प्रूव हो जाती है। सो रेट यहाँ पे इडियम्स का मतलब सिंपल होता है कि उसका कोई लिटरल मतलब नहीं होता है। इसको हम लोग ट्रांसलेट नहीं कर सकते, इसके लिटरल मतलब को हम लोग सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते। इसको हमें नॉन लिटरली याद रखना पड़ता है और नॉन लिटरली ही उसे यूज करना पड़ता है। ओके, तो इडियम्स मीन्स कहावत और रूढ़ी प्रयोग जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक इडियम्स है मेरे पास, दैट इज लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी का मतलब लिटरली इसका मतलब लॉन्ग मतलब लंबा, लंबे समय से, नो सी मतलब नहीं। तो यहाँ पे एक्चुअली इसका लिटरल मीनिंग और नॉन लिटरल मीनिंग थोड़ा बहुत तो मैच कर ही जाएगा। लॉन्ग टाइम नो सी मतलब लंबे समय से किसी से ना मिलना, यानी लंबे समय से आपने किसी को ना देखा हो तो आप उसे कहेंगे लॉन्ग टाइम नो सी। क्या कहेंगे? लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी मतलब आपने लंबे समय से उसको क्या नहीं किया है, देखा नहीं है। अगर लंबे समय से कोई दो लोग नहीं मिले हैं तो वो लोग कह सकते हैं कि भाई इतने दिनों से तुम कहाँ थे। हमने कहीं कहीं पर सुना होगा, कोई कोई आके मिलता है, हमें बोलता है कि भाई कितने दिन हो गए, कहाँ पे हो भाई तुम, दिखाई नहीं दे पड़ते हो। तो आप उस सिचुएशन में लॉन्ग टाइम नो सी कह सकते हैं कि वी मीट लॉन्ग टाइम नो सी, मतलब कि हम आज मिले हैं, लंबे समय से हम लोग नहीं मिले थे और आज हम लोग मिले हैं। तो लॉन्ग टाइम नो सी यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम नो सी का ऑफिशियल मतलब ये होगा, अ ग्रीटिंग यूज्ड बाय पीपल हु, ये एक ग्रीटिंग है, जैसे गुड मॉर्निंग होता है, गुड आफ्टरनून होता है, वैसे ही एक ग्रीटिंग है कि लॉन्ग टाइम नो सी, भाई मैं लंबे समय से तुम्हें मैंने देखा नहीं है। सी ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, दो लंबे समय से अगर किसी को हम नहीं देखते, दिखाई पड़ता है कोई, तो लॉन्ग टाइम से वो नहीं दिखाई पड़ता है तो हम लोग कह सकते हैं लॉन्ग टाइम नो सी। इसका एक एग्जांपल हम लोग यूज करते देखते हैं। Accepted as a fixed expression. Example: Hi Rachel, long time no see. हाय रेचल, हाय रचल, लॉन्ग टाइम नो सी। हाय रचल, लॉन्ग टाइम नो सी मतलब लंबे समय से तुम्हें मैंने देखा नहीं है। Oh, hi Gabriel. Nice to see you again. हाय गैब्रियल, नाइस टू सी यू अगेन। मतलब नाइस टू सी यू अगेन मतलब तुझसे दोबारा मिलते हैं, खुशी हुई, नाइस टू सी यू अगेन। ओके, तो दिस इज द वे वी कैन से ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स के लिए हम लोग लॉन्ग टाइम
नो सी का यूज कर सकते हैं। ओके, ये सारे जो इडियम्स में यहाँ पे बता रहा हूँ उसको आप लिख लेना अपनी बुक में आफ्टर ये वीडियोस में से यूट्यूब में जाकर के देख करके। अभी फिलहाल मैं लिखने के लिए टाइम नहीं दे रहा हूँ, इसे बाद में लिख लेना और इसे सेंटेंसेस बनाने की भी कोशिश करते रहना। ओके, नाउ द सेकेंड 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 इज अ फाइंडर कीपर। ये छोटे बच्चों के लिए होता है। छोटे बच्चे हमेशा फाइंडर कीपर होते हैं, ज्यादातर बच्चे फाइंडर कीपर होते हैं, पर ये अच्छी हैबिट नहीं होती। हम ज्यादातर मम्मियां कहती है कि डोंट बी अ फाइंडर कीपर्स। फाइंडर कीपर्स मतलब होता है किसी की चीज को, किसी की कोई चीज गुम गई है तो बच्चे तुरंत उसको उठाकर ले लेते हैं, मतलब कि अपने पास रख लेते हैं। तो फाइंडर कीपर्स मतलब कोई चीज किसी की गुम गई है और उसको अपने पास रख लेना, दैट इज कॉल्ड अ फाइंडर कीपर। ये मोस्ट ऑफ द किड्स के लिए ज्यादातर होता है, ये वर्ड्स थोड़ा सा उसी के लिए बना हुआ है, फाइंडर कीपर्स। जैसे एग्जांपल, इफ समवन लूज समथिंग, अगर किसी की कोई चीज गुम गई है, द पर्सन हु फाइंड इट कैन कीप इट। मतलब इफ पर्सन लूज समथिंग, अगर किसी पर्सन की कोई चीज गुम हो गई है, द पर्सन हु फाइंड इट कैन कीप इट, और जो पर्सन को उसे मिलती है ना वो उसके पास रख लेता है, उसको कहा जाता है फाइंडर कीपर्स। मतलब किसी की कोई चीज गुम गई है, आपने उठा के अपने पास रख ली, तो आप कौन बन गए? फाइंडर कीपर बन गए। और आपको कोई चीज मिली और आपने अपने पास रख ली, दैट इज कॉल्ड फाइंडर कीपर्स। ज्यादातर किड्स ऐसी तरीके से करते हैं। तो इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं, लेट्स फास्ट। Finders keepers. The full form of this phrase is finders keepers. Means and is ancient history. Wow, a loaded wallet. व्हाट इज एग्जांपल? वाओ, अ लोडेड वॉलेट। लोडेड वॉलेट मतलब अरे वाह, भरा हुआ वॉलेट है, मतलब खाली खाली नहीं है, भरा हुआ वॉलेट है। वाओ, अ लोडेड वॉलेट, फाइंडर्स कीपर्स। यहाँ पे क्या यूज किया? फाइंडर कीपर्स। चलो भाई रख लो इसको अपने पास। फाइंडर कीपर्स मतलब किसी के वॉलेट गुम हो गया है, उसको उसने अपने पास रख लिया, दैट इज कॉल्ड अ फाइंडर कीपर्स। फाइंडर कीपर्स मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसका नॉन लिटरल मीनिंग क्या होगा? फाइंडर कीपर्स मतलब कि किसी की गुम हो गई चीज आप अपने पास रख लेते हो, तो यू आर अ फाइंडर कीपर्स। Finders keepers. ये भी एक अच्छा सा इडियम्स है जो ज्यादातर नॉर्मली यूज करना चाहिए और कर सकते हैं आप लोग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अभी इसका लिटरल मीनिंग तो ये होगा कि बैग में से बिल्ली बाहर आ गई। ओके, तो ऐसा तो हो नहीं सकता इसका लिटरल मीनिंग। इसका नॉन लिटरल मीनिंग क्या होगा कि हमारी कोई भी सीक्रेट बात है वो क्या हो गई? लीक हो गई। हमारी कोई सीक्रेट बात है वो क्या हो गई? लीक हो गई। अभी आपने कोई सीक्रेट बना के रखा हुआ था, किसी को बताना नहीं था और अचानक से सबको पता चल गया, लीक हो गई, तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी जो बात थी वो सबके सामने आ गई। जो बात थी वो सबके सामने आ गई। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग यानी कि बात सामने आ गई। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बिल्ली कहाँ से आ गई? भाग, क्या हो गई? बाहर आ गई। बिल्ली क्या हो गई? बैग से बाहर आ गई, मतलब हमारी बात क्या हो गई? बाहर आ गई। दैट इज अ लिटिल let the cat out of the bag. The accidentally revealed us a secret. Accidentally revealed us a secret. यानी कोई secret था वो accidentally क्या हो गया? बाहर आ गया। वैसे हम लोग कहेंगे let the cat out of the bag. इसको example wise समझ लेते हैं very fastly. What is the example of little cat out of the bag? यहाँ पे example थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, इसको आप को नहीं दिख रहा होगा, रुको मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। हाँ, ये example थोड़ा लंबा चौड़ा है, आपको शायद समझ में ना आए, बट मैं इसको समझा देता हूँ। इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। मैं बता देता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। आई एम नॉट टेलिंग लियो, आई एम नॉट टेलिंग लियो। मैं लियो को जाके नहीं बताऊंगा। लियो एक बंदे का नाम है, एक पर्सन का नाम है, तो यहाँ पे बोला जाता है कि आई एम नॉट टेलिंग लियो, मैं लियो को जाके नहीं बताऊंगा अबाउट द कार्ल्स सरप्राइज पार्टी। जो कार्ल्स का सरप्राइज पार्टी हमने डिसाइड किया है ना कि कार्ल्स का हम लोग क्या करने वाले हैं, कार्ल्स का क्या करने वाले हैं? सरप्राइज पार्टी करने वाले हैं, और वो पार्टी के बारे में हम लियो को नहीं बताएंगे। क्यों? क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि ही विल लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। क्योंकि वो क्या करता है सीक्रेट को, वो मतलब ही कैन नॉट कीप सीक्रेट। यानी हमारे ग्रुप में भी ऐसा कोई बंदा होता है जिसके पेट में कोई बात टिकती नहीं है। ओके, उसके पेट में कोई बात टिकती नहीं है, तो हम ज्यादातर अवॉइड करते हैं कि उसको ना बताएं, क्योंकि वो हमेशा क्या करता है, वो उसके पास वो संभाल के रख ही नहीं सकता, वो जाकर के सबको बता ही देगा, हमें पता है। तो हम लोग उसको नहीं बताएंगे, कोई भी सीक्रेट है उसको नहीं बताएंगे। ऐसा ग्रुप में एक आध होता है कि भाई इसको मत बताना, नहीं तो वो जाके सबको बता देगा।
ओके, जैसे हमारे स्कूल ग्रुप में, कॉलेज ग्रुप में भी ऐसा होता है, तो ऑफिस ग्रुप में कि भाई इसको बता देंगे ना तो ये जाके टीचर को, बॉस को या दूसरे लोगों को जाके बता देगा, इसको मत बताओ। ओके, तो आई एम नॉट टेलिंग लियो, मैं लियो को नहीं बताऊंगा बिकॉज इसका जो सरप्राइज पार्टी है, बिकॉज ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब उसके उसमें से ना, उसकी बैग में से बिल्ली बाहर ही आ जाएगी, मतलब ही कैन नॉट कीप सीक्रेट। ओके, वो सीक्रेट ज्यादा दिन संभाल के नहीं रख पाएगा, मतलब उसकी बैग में से बिल्ली बाहर आ ही जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड सीक्रेट को लीक करना, दैट इज कॉल्ड लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। नाउ द फोर्थ वन, फोर्थ आज का जो इडियम्स हम लोग यूज करने वाले हैं, दैट इज स्पीक ऑफ द डेविल। स्पीक ऑफ द डेविल, ये थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग है। स्पीक ऑफ द डेविल, स्पीक ऑफ द डेविल मतलब क्या? स्पीक ऑफ द डेविल मतलब क्या कि हम अगर किसी की बात कर रहे हैं और वही आपके सामने आ जाए, दैट इज कॉल्ड स्पीक ऑफ द डेविल। अभी जैसे आप किसी की बात कर रहे हो और अचानक से वो आपके सामने आ जाए, दैट इज स्पीक ऑफ द डेविल। स्पीक ऑफ द डेविल, ओके, मतलब आप किसी बंदे की बात कर रहे हो और उसके बारे में आप डिस्कस कर रहे हो कि भाई वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, और अचानक से वो आपके सामने आके खड़ा हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड स्पीक ऑफ द डेविल। स्पीक ऑफ द डेविल मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं वही सामने आ जाए, दैट इज कॉल्ड स्पीक ऑफ द डेविल। नाउ व्हाट इज द एग्जांपल फॉर दिस? यहाँ पे एग्जांपल है, a reference to no, this is the meaning, a reference to someone who appears unexpectedly while being talked about, यानी unexpectedly कोई आपके सामने आ जाए और जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। What is the example? Did you hear about the fight ban? Did you hear about the fight ban? क्या तुमने fight ban के बारे में सुना है? Got into the last night. Got into the last night. Oh, speak of the devil. There he is. देखो, मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वही सामने दिख गया, मतलब कि स्पीक ऑफ द डेविल, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वही आपके सामने आके खड़ा हो गया, दैट इज कॉल्ड स्पीक ऑफ द डेविल। नाउ द दिस इज द लास्ट, दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। आज हमने जितने भी यहाँ पे इडियम्स देखे उसमें एक तो कैट ऑफ द बैग आउट है, ओके, गेट आउट ऑफ द बैग, ये एक अच्छा सा है, और ये भी एक अच्छा सा इडियम्स है जो आप ज्यादातर यूज कर सकते हो। इसका मतलब होता है यहाँ पे व्हेन पिग्स फ्लाई, पिग्स फ्लाई, पिग्स फ्लाई, कभी पिग कभी फ्लाई कर सकता है क्या? इट इज इम्पॉसिबल, इट इज जस्ट लाइक इम्पॉसिबल। पिग कहाँ फ्लाई करेगा, बेचारा मुश्किल से चल पाता है, वो फ्लाई कैसे करेगा? तो पिग्स, पिग्स फ्लाई, तो मतलब हम बोलते हैं ना कि ये इम्पॉसिबल है, ये चीज कभी नहीं हो सकती, हम श्योर है कि ये नहीं हो सकता। ओके, तो उसको बताने के लिए 100% श्योरिटी बताने के लिए कि आपको 100% श्योर है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो उसके लिए आप क्या इडियम्स यूज करोगे? पिग्स फ्लाई। क्या यूज करोगे? पिग्स फ्लाई। क्या पिग्स फ्लाई जैसी बातें कर रहा है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। पिग्स फ्लाई मतलब कि वो हो ही नहीं सकता। ओके, दैट इज अ नॉट इम्पॉसिबल, मोस्ट टू इम्पॉसिबल इज नेवर हैपन, समथिंग दैट विल नेवर हैपन, ऐसा कभी नहीं हो सकता, उसको हम लोग बोलेंगे पिग्स फ्लाई, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पिग्स फ्लाई। तो ये सब छोटे बड़े इडियम्स है, इसको यूज कर सकते हो, जैसे कैट आउट ऑफ द बैग, कैट आउट ऑफ द बैग हो गया, या फिर पिग्स फ्लाई हो गया, ऐसे छोटे बड़े आप ज्यादातर एनिमल्स के इडियम्स ज्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर हम एनिमल्स के इडियम्स बोलते हैं, हम हिंदी में भी ज्यादातर एनिमल्स के रिलेटेड ही इडियम्स को बोलते हैं, जैसे लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, मतलब ऐसे सब जो इडियम्स है ना ज्यादातर वो एनिमल्स के लिए ज्यादा इजी होते हैं, और एनिमल्स से हम लोग उसको सिचुएशन को कंपेयर कर लेते हैं, तो वो थोड़ा सामने वाले को समझने में भी इजी हो जाता है, आपको बोलने में भी वो इजी होता है। तो ये सब इडियम्स में भी अलग अलग कैटेगरी होती है, कुछ कलर के इडियम्स होते हैं, कोई एनिमल्स के इडियम्स होते हैं, तो हम लोग ये जो इडियम्स देख रहे हैं वो कौन सा इडियम्स है? एनिमल के रिलेटेड। दूसरे इडियम्स कलर के रिलेटेड भी रहते हैं, तो इडियम्स जो होते हैं ना वो अलग अलग तरह के भी होते हैं, तो उसको भी आपको ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे व्हेन द पिग्स फ्लाई समथिंग दैट विल नेवर हैपन, तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं क्या है। इसका एग्जांपल ये है कि एग्जांपल, डू यू थिंक, डू यू थिंक डैड विल विन द लॉटरी सम डेज, तुम्हें लगता है कि पापा को कभी लॉटरी लगेगी? श्योर व्हेन पिग्स फ्लाई, हाँ मुझे ऐसा ही लगता है कि जिस दिन पिग्स फ्लाई करेगा ना उस दिन उनको लॉटरी लगेगी, मतलब मैंने क्या बता दिया कि कभी ना पिग्स फ्लाई करने वाला है ना कभी पापा को लॉटरी लगने वाली है। तो डू यू थिंक डैड विल विन द लॉटरी सम डेज, तुम्हें लगता है कि पापा को कभी लॉटरीज लगने वाली हैं? श्योर व्हेन पिग्स फ्लाई, हाँ श्योर मुझे लगता है, लेकिन कब होगा वो? जब पिग्स फ्लाई करेगा, तो ये तो कभी हो नहीं सकता, यानी उसने इनडायरेक्टली बता दिया कि व्हेन पिग्स फ्लाई। ओके, तो हम लोग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग पिग्स फ्लाई और गेट आउट ऑफ द डॉग
और स्पीक ऑफ द डेविल जैसे सेंटेंसेस, जैसे इडियम्स को आप डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो। तो आज हमने काफी सारी चीजों को देखा है। फिलहाल तो हमने पहले फ्रेज देखा, कॉस्ट द अर्थ, चार्ज द अर्थ, और उसके एग्जांपल्स को देखा। कॉस्ट द अर्थ, चार्ज द अर्थ इज वेरी सिंपल। उसे हम कब बोलेंगे, जब भी कोई भी चीज रेडिकुलसली एक्सपेंसिव होगी या फिर कॉस्टली होगी, तो आप उसे क्या बोलोगे, कॉस्ट द अर्थ, चार्ज द अर्थ। फिर हमने क्या देखा यहाँ पे, इडियम्स देखे सारे। तो ये सारे इडियम्स के एग्जांपल्स आप बना सकते हो। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीजें बताई। आज फर्दर 5 इडियम्स हम लोग आगे के 5 इडियम्स भी कवर करेंगे, ताकि हमारे इडियम्स आज के दिन में एंड अप हो जाएंगे, फिनिश्ड हो जाएंगे। ओके, हिट द पे, क्या आएगा, हिट द पे, हिट द पे, दैट इज अवर आज के दिन का हमारा 6th इडियम्स है। हिट द है, हिट डे है, हिट दी है। हिट दी है का मतलब क्या होता है, जस्ट अ मिनट। ओके, चलो, हिट डे है। हिट डे है का मतलब क्या हुआ कि भाई अब तो मैं थक गया हूँ और मैं जा रहा हूँ, जाकर के सोना है। ऐसा सिचुएशन आता है ना कि हम लोग पूरे दिन बहुत काम करते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, अब तो जाके सीधा सो जाना है, अब कुछ नहीं हो सकता, जाकर के सीधा बेड पे सो जाना है। दैट इज कॉल्ड हिट डे है, दैट इज कॉल्ड हिट है। हिट है का मतलब क्या होता है कि भाई अब एंड अप हो गया, अब एंड आ गया, अब जाके सीधा बेड पे लेट जाना है। ओके, यानी अगर आप दिन भर बहुत काम किया होगा, बहुत काम किया होगा, और अब काम करने के बाद आप क्या सोचोगे, घर जाके खाना भी ना खाना है, नहीं कुछ नहीं करना है, नो खाना नथिंग, जा करके भी सीधा बेड पे सो जाना है। दैट इज हिट है। हिट है मतलब, हिट है, go to bed in order to sleep, go to bed in order to sleep, go to bed in order to sleep, go to bed in order to sleep। ओके, बेड पे जाना है, किसके लिए जाना है, सोने के लिए। आई कैन नॉट स्टैंड इट एनी मोर, आई कैन नॉट स्टैंड इट एनी मोर, अब मैं एक भी मिनट खड़ा नहीं रह सकता। आई एम हिटिंग द बैक, आई एम हिटिंग द है, आई एम हिटिंग द है का मतलब क्या होगा, अब मुझे सोना है, अब मैं बेड पे जाके सो जाऊंगा। आई कांट स्टैंड इट एनी मोर, अब मैं एक मिनट भी यहाँ खड़ा नहीं रह सकता, मैं इतना थक गया हूँ कि आई एम हिटिंग द है। हिटिंग द है मतलब अब जाके मैं सो जाऊंगा, दैट इज कॉल्ड हिटिंग अ है। ओके, ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग मतलब, अब ब्रेक अ लेग मतलब पैर को तोड़ना ना भाई, नहीं तोड़ना है। ब्रेक अ लेग का इडियम से लिटरल मीनिंग होगा पैर को तोड़ दो, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, इसका मतलब ये बॉडी इडियम्स है। ये कौन सा इडियम्स है, बॉडी इडियम्स। देखो एनिमल इडियम्स होता है, कलर इडियम्स होता है, ये कौन सा इडियम्स है, बॉडी का इडियम्स है। हमारी अलग अलग बॉडी को भी इडियम्स में कवर किया जाता है, तो हमारे बॉडी पार्ट्स के इडियम्स में क्या आएगा, ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होगा, ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होगा, सोचो क्या हो सकता है इसका इडियम्स। इट इज अ, किसी को क्या देना, किसी को क्या देना, गुड लक बोलना, क्या बोलना, गुड लक। अगर कोई परफॉर्मेंस करने जा रहा है, कोई शो करने जा रहा है, ओके, कोई ऑडिटोरियम में जा रहा है शो करने के लिए, या फिर कोई नया कुछ परफॉर्म करने जा रहा है, या एग्जाम देने जा रहा है, कुछ परफॉर्म करने जा रहा है, तो आप उसको गुड लक बोलने के लिए ब्रेक अ लेग बोलोगे, क्या बोलोगे, ब्रेक अ लेग। अब क्या होगा, अगर उसको नहीं समझ आएगा तो कुछ अजीब ही समझ लेगा। ओके, ब्रेक अ लेग, विश समवन लक स्पेशली बिफोर अ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के पहले हम लोग उसको समवन लक्स के बारे में बोलने के लिए, विश करने के लिए ब्रेक अ लेग बोलेंगे। इट्स अ वन काइंड ऑफ विश, इट्स अ वन काइंड ऑफ विश, इट्स अ वन काइंड ऑफ विश। हे पाल, ब्रेक अ लेग, यानी मैंने पाल को कहाँ पे जा रहा था, परफॉर्म करने जा रहा था, मैजिक शो, क्या करने जा रहा था, मैजिक शो परफॉर्म करने जा रहा था, जादू बताने वाला था। जाते वक्त मैंने क्या बोला, हे पाल, ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग मतलब उसको मैंने क्या किया, विश किया। ओके, गुड लक, गुड लक के लिए विश किया, दैट इज अ ब्रेक अ लेग। ओके, इट्स अ वेरी ओल्ड वर्ड एक्चुअली, बिफोर लाइक 19th की मिड ऑफ द सेंचुरी में इसको बोला जाता था। ये थोड़ा पुराना इडियम्स है, बट कहीं बार आज भी इसे यूज किया जाता है, ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग मींस है पाल, ब्रेक अ लेग मतलब उसको विश करना। ओके, नाउ द थर्ड इडियम्स आज का है, हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब नेल मतलब नाखून, नाखून को सर पे मारो, हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि नेल को पकड़ के सर पे क्या करो,
मारो, ऐसा हो नहीं सकता ना, इसका लिटरल मीनिंग यही है। लेकिन हमें इडियम्स के कौन से मीनिंग को देखना होता है, नॉन लिटरल मीनिंग। तो इसका लिटरल मीनिंग ये है कि नाखून को सर पे मारो, बट इसका नॉन लिटरल मीनिंग क्या है, डू और से एग्जैक्टली द राइट थिंग्स। आप उसको एग्जैक्ट राइट थिंग्स बताना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो, राइट थिंग्स। मतलब आप घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे हो, जो है उसको सीधे सीधे बता दिया, दैट इज द हिट द नेल ऑन द हैंड। यानी आप ऐसा बोलना चाहते हो कि भाई घुमा फिरा के मत बोलो, हिट द नेल ऑन द हैंड, सीधा हिट द नेल हैंड हैंड, मतलब हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है सीधे सीधे बताओ। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में यहाँ पे क्लियर कट है, माइक एग्जांपल, माइक जस्ट फाउंड द प्रॉब्लम। माइक को क्या मिला, गाड़ी में एक प्रॉब्लम मिला, ही हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब उसने सीधे सीधे प्रॉब्लम को बता दिया, मतलब घुमा फिरा के नहीं बताया कि भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये बदलना पड़ेगा वो बदलना पड़ेगा, उसने सीधा जाके बता दिया कि भाई ये प्रॉब्लम है गाड़ी में। ओके, वो कार चेक कर रहा था और उसे एक प्रॉब्लम फाउंड हुआ, जैसे उसे फाउंड हुआ, ही हिट द नेल ऑन द हेड, यानी उसने जाकर के सीधा उसको सही सही बता दिया, सीधे सीधे बता दिया, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्डली बता देना, दैट इज कॉल्ड हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको बता देना, दैट इज कॉल्ड हिट द नेल ऑन द हेड। नाउ द किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। किल, ये फिर से एनिमल इडियम्स है, ये फिर से एनिमल इडियम्स है, यानी कि दो बर्ड्स को मारना एक पत्थर से, एक पत्थर से दो बर्ड्स को मार दो। अरे बाप रे, क्यों मारने का, ओके तो ये इसका लिटरल मतलब है कि एक पत्थर से दो बर्ड्स को मार दो, लेकिन हमें लिटरल मीनिंग से कोई लेना देना नहीं होता है, बिकॉज हम यहाँ पे इडियम्स सीख रहे हैं। तो इडियम्स में हमें कौन सा मीनिंग याद रखना होता है, नॉन लिटरल मीनिंग। ओके, तो नॉन लिटरल मीनिंग के अंदर इसका नॉन लिटरल मीनिंग क्या होगा, एक तीर से दो निशान, ये हमने कहीं बार बोला होगा, एक तीर से दो निशान, मतलब कि एक तीर छोड़ा दो जगह पे निशान लग गया, दैट इज किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। ओके, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, यानी एक पत्थर से दो निशान। तो एग्जांपल देखते हैं, इसका मीनिंग तो हमें समझ आ गया, सोल्व टू प्रॉब्लम्स विथ अ सिंगल एक्शन, कुछ एक ही ऐसा काम करो कि दोनों प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारी दो प्रॉब्लम है, वोकेबलरी को सीखो, ग्रामर को सीखो, फिर सेंटेंस को बनाओ, यानी ये दो प्रॉब्लम हमारी है। हमें इंग्लिश के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है, वोकेबलरी, कि भाई शब्द का मतलब नहीं पता चलता, ग्रामर नहीं पता चलता, तो ये ग्रामर और शब्द नहीं पता चलता है, तो ये दो प्रॉब्लम का एक निशान क्या है, एक तीर कौन सा है, फ्रेज सीख जाओ, क्या सीख जाओ, फ्रेज सीख जाओ, जो हम लोग रोज सीख रहे हैं फ्रेज। फ्रेज क्या है, एक तीर से दो निशान, इससे ग्रामर भी छूट जाएगा और वोकेबलरी से भी चक्कर छूट जाएगा। मतलब हम रोज शुरुआत में इंग्लिश में क्या, इंग्लिश की क्लास में रोज स्टार्ट में हम लोग इसी इसी इडियम्स को फॉलो करते हैं कि भाई एक तीर से दो निशान, छोड़ो वोकेबलरी को, छोड़ो ग्रामर को, तेल लेने गया, सीधे फ्रेज ही सीख जाओ, क्योंकि वही तो हमें बोलना है। ओके, वही तो हमें बोलना है, उसी को डायरेक्ट सीख जाओ, बाकी सब गया साइड में। ओके, यानी एक तीर से दो निशान, सॉल्व टू प्रॉब्लम्स विद अ सिंगल एक्शन, एक ही काम ऐसा करो जिससे दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, दैट इज कॉल्ड अ किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। ओके, बट हम लोग क्या करते हैं, फ्रेज सीखते पर सेंटेंस नहीं बनाते, सेंटेंस नहीं बनाते तो फिर वो सब वेस्ट हो जाता है, कोई काम का नहीं है। फ्रेज को अगर आपको याद रखना है, सीखना है, तो रोज सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। जो फ्रेज हो गया है, जो हमने 2 दिन पहले सीखा था, 5 दिन पहले सीखा था, 10 दिन पहले सीखा था, वो फ्रेज को भी आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अब जितने फ्रेजेस को प्रैक्टिस करते जाओगे उतने फ्रेजेस स्ट्रॉन्ग होंगे, तो ग्रामर भी छोड़ दो और वोकेबलरी भी छोड़ दो, कोई लेना देना नहीं है। बस फ्रेजेस को अच्छे से कंप्लीट करो, सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो, गलत सही जैसे सेंटेंस बनते बनाने की कोशिश करो। अगर ये आप कंटिन्यू करते रहते हो तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इमीडिएटली इंप्रूव हो जाएगी। कोई ग्रामर की झंझट नहीं है और ना कोई वोकेबलरी की झंझट है, सीधे सीधे आपकी इंग्लिश क्लियर हो जाती है। दैट इज अ बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश। ओके, सॉल्व टू प्रॉब्लम्स विद अ सिंगल स्टोन एक्शन। अब इधर एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल क्या है, ओ सेट, जस्ट अ मिनट। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है यहाँ पे, वी नीड फूड एंड न्यू क्लॉथ। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, फूड चाहिए और क्लॉथ चाहिए। वी नीड फूड एंड क्लॉथ, हमें फूड भी खरीदना है, मतलब फूड भी खरीदना है और क्लॉथ भी खरीदना है। तो उसने क्या बोला, ये इफ वी गो टू द न्यू मॉल, अगर हम जो नया मॉल खुला है ना उसमें जाएंगे, तो वी कैन किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, यानी हम अगर उस नए मॉल में जाएंगे तो हमारे दोनों प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। वो उस नए मॉल में क्या है, हमें फूड भी मिल जाएगा और क्लॉथ भी मिल जाएगा। मतलब हम बोलेंगे कि भाई पहले फूड की दुकान में जाओ फिर क्लॉथ की दुकान में जाओ, उससे अच्छा वो नया मॉल जो बना है उसमें चले जाते हैं, वहां पे दोनों ही चीजें मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन।
आज के दिन का लास्ट और 10वां एग्जाम्पल, 10वां इडियम्स। आज हमने टोटल 9 इडियम्स अभी तक सीखे, ये हमारा 10th इडियम्स है। ये 10th इडियम्स एस्ट्रॉइड्स के ऊपर है, एस्ट्रॉइड्स के ऊपर है। यहाँ पे हम किसकी बातें कर रहे हैं? नेचुरल चीजों की, मून की, अर्थ की, ओके, मार्स की, इनकी सबकी बातें करते हैं। ये भी एक अलग टाइप का इडियम्स होता है। यहाँ पे बॉडी यूज नहीं हुई है, बॉडी पार्ट्स यूज नहीं हुए हैं, यहाँ पे इमेजिनेशन नहीं हुई है, यहाँ पे कलर यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे एनिमल यूज नहीं हुआ है। हाँ, ये एक्चुअली कलर इडियम्स में भी आ सकता है बिकॉज ब्लू मून है, बट इसको हम लोग नेचुरल चीजों में रख सकते हैं। वंस इन अ ब्लू मून, इसको देखते ही पता चल जाएगा। इसका इसका देखो लिटरल मीनिंग तो ये है कि हरा चांद। ओके, हरा चांद तो हो नहीं सकता, कभी भी हरा चांद हमने नहीं देखा है। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून मतलब हरा चांद नहीं होता है। तो यहाँ पे ब्लू, ब्लू मतलब क्या पता, अभी ब्लू को गुजराती में क्या? वंस इन अ ब्लू मून, ब्लू मून मतलब